Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Hilal Ahmad Hilal, and this is my sixth lecture about travel and tourism. And my today's topic is identification of locations in a map. Identification of locations. So, identification of locations. This today's lecture is related to my last lecture. My last lecture was significance of geography in tourism, and today's topic it is also related with geography. And today's topic is identification of locations. How we can identify a place, how we can identify a location in a map. So, to identify a location, first we must know the latitudes and longitudes of Earth. When we know the latitudes, the degrees of latitudes, the degrees of longitudes, so we can easily identify a location. So first we will discuss the latitudes. So latitudes. So actually latitudes and longitudes are the two fundamental concepts. They are the two fundamental concepts of learning to locate a place. So latitudes, what are now latitudes? I will draw here the sketch of Earth. This is Earth, this is the globe. Here we have important latitude. Actually this is not the line. Our model of Earth, it is sphere, it is oval shaped. So this line, this is the important latitude. So what are now latitudes? Latitudes are actually horizontal lines of Earth. Horizontal lines that run parallel to the equator. That is why we call these parallels of latitude. So they are always parallel. What is parallel? Parallel is, this is one line, this is another line, this is another line, this is another line. So these lines does not meet at any place. So these are parallel lines. So our latitudes are also parallel. And they are always parallel. They never meet at any place. So this is latitude. Now we have important latitudes. We have some important latitudes. First important latitude is equator. Equator is very important latitude among all latitudes, because equator is a latitude that divides our Earth into two equal hemispheres. So मैं आपको ऐसे समझाऊंगा. This is equator. This is This is not a line. This is a circle. So ये line जो है, ये हमारे ग्लोब को क्या करता है? It divides it into two equal hemispheres. क्योंकि ये एक स्फीयर है. अब यहाँ से आधा जो है, हेमी मीन्स हाफ, हेमिस्फीयर बन गया. यहाँ से ये एक हेमिस्फीयर बन गया. And we also know the direction also. This is the north and this is the south. So this means that this is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. So equator जो है, equator ये equator है, और equator का एक और नाम है, that is 0 degree latitude. इक्वेटर का नाम क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड. सो लैटिट्यूड्स, अब जो है लैटिट्यूड, यहाँ पे जो नंबरिंग होती है, डिग्रीज में जो नंबरिंग होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो 0 से स्टार्ट होती है. अगर हमें नंबरिंग करनी होगी, डिग्रीज यहाँ से डालनी होगी, तो यहाँ से. अब यहाँ से डिस्टेंस जो है, लैटिट्यूड, यहाँ से डिग्रीज जो डिस्टेंस जो है इक्वेटर से नॉर्थ तक कितनी डिस्टेंस है? इट इज 10,000 किलोमीटर. एंड अब
ये नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से शुरू होगी। ये कहाँ से शुरू होगी? ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से शुरू होगी। सो इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बिग सर्कल ऑन अर्थ। ये सबसे बड़ा सर्कल जो है, क्योंकि इक्वेटर क्या है? इट इज नॉट अ लाइन, इट इज अ सर्कल। सो इट इज ऑल्सो अ बिग सर्कल ऑन अर्थ, बिग सर्कल ऑन अर्थ। ये सबसे बड़ा सर्कल यहाँ पे बनता है, क्योंकि आवर अर्थ इज स्फीयर, इट इज ओवल शेप्ड। सो यहाँ पे ये सबसे बड़ा सर्कल बनाता है। ऐसे इसने एक सर्कल बनाया। अब जो है, अब यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है। अब बहुत सारे लैटिट्यूड जिड्रा होते हैं। यहाँ पे एक लैटिट्यूड बन गया, यहाँ पे दूसरा बन गया, यहाँ पे दूसरा बन गया, यहाँ पे ऐसे, बिकॉज दीज आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सो ये सारे जो है ये ऐसे ड्रा होंगे। सो दीज आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, दीज आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सो दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, बिग सर्कल ऑन अर्थ एंड इक्वेटर एंड इक्वेटर एंड इक्वेटर। सो अब जो है यहां से मैंने आपको बताया दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। सो दिस इज इक्वेटर। नाउ वी हैव some important latitudes also. Now another latitude is, that is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Tropic of Cancer lies in the hemisphere of, it lies in hemisphere of, it lies in northern hemisphere. It lies in northern hemisphere. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, लैटिट्यूड है ये कहाँ पे होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ दिस लैटिट्यूड? दिस इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ और 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, ऐसे भी हम। सो दिस इज द वैल्यू। अब जो है, अब यहाँ से शुरू है, तो यहाँ पे हम जो है दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ, ये जो है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये किस में है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है। अब इसमें अब इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की एक जो है इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारी कंट्री को, इंडिया को 2 इक्वल हॉलवेज में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर divides our country into 2 इक्वल हॉलवेज। ये हमारी कंट्री को, यानी कि ये हमारी कंट्री को 2 इक्वल हॉलवेज में डिवाइड करता है, पास होता है। और जो है अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अब सन रेज जो है, सन रेज डायरेक्टली इस पे फॉल होती है, डायरेक्टली इस पे फॉल होती है। और वो नॉर्दर्न लिमिट होता है सन का, अहेड, सन इज अहेड नॉर्दर्न लिमिट। वो कब होता है? वो 21 जून को होता है। 21 जून जो है, इस डेट पे, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन रेज है वो डायरेक्टली इस पे फॉल होती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज फॉल होती है, उन सारी कंट्रीज में जो है समर उस पे एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सन रेज जो है जून में क्या होता है? जून में वो समर उनमें एक्सपीरियंस, क्योंकि सन रेज जो है वो डायरेक्टली किस पे फॉल होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वो फॉल होती है। सो दिस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जो है दिस लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 23 डिग्री। दिस मीन्स 23 डिग्री, यहाँ एन हमने लिखा, इस एन से भी हमें पता चल गया कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब अनदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज
Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Tropic of, it is very important. It is also important latitude. Latitude, ये भी एक important latitude है हमारे अर्थ में. हमारे अर्थ पे ये important latitude है. And this Tropic of Capricorn lies in the southern hemisphere. Southern hemisphere. Southern hemisphere. ये southern hemisphere में fall होता है. And what is the value of this Tropic of Capricorn? Same. It is same. Value is same. Value is same. 23 degree 30 minutes, but south, or 23 degree half south. देखिए ये अब कहाँ पे है, तो अगर वो यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है. It is Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. So what is the value? 23 degree 30 minutes. It is same value. Tropic of Cancer का भी यही value है, इसका भी यही value है, same. लेकिन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉल होता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में फॉल होता है. लेकिन इसकी भी इंपॉर्टेंस है कि 22 December sun rays directly fall in this latitude. और उसमें क्या होता है, सन जो है वो एंड होता है साउदर्न एक्सट्रीम लिमिट पे. सो 22 December जो है सन रेज डायरेक्टली फॉल किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये डायरेक्टली फॉल होते हैं. तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो वी हैव अनदर important latitude, that is Arctic. So it is Arctic Circle. So what is Arctic Circle? It is also important latitude. It also falls in northern hemisphere. ये northern hemisphere में fall होता है. And what is the value? Northern hemisphere, NS, northern hemisphere में fall होता है. And what is the value? Value is 66 degree of north. और ऐसे भी लिख सकते हैं हम 66 degree 30 minutes north. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये यहाँ पे होगा, ये ऐसे, ये आर्टिक है. ये क्या है? आर्टिक, ये आर्टिक सर्कल है, ये आर्टिक सर्कल है. और जो है दिस इज आर्टिक सर्कल, दिस इज द वैल्यू, ये इसका वैल्यू है. और अब जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, 21 जून जो है, 21 जून 24 hours sun rays are available. And sunlight is available on this Arctic circle on what date? 21 June 24 hours, यानी कि 24 घंटे सन रेज यहाँ पे अवेलेबल होती है. यहाँ पे क्या होती है 21 जून पे 24 hours यहाँ पे क्या होती है. So this is the value. This is the Arctic circle. It falls in the northern hemisphere. Value is 66 degree 30 minutes north, and 21 June 24 hours sun rays and sunlight is available. ठीक है. इसके बाद है एक और हमारा latitude, that is this is Arctic circle, another is Antarctic circle. Antarctic circle is the value is same, and it follows in southern hemisphere, and value is same, value 66 degree half south, or 66 degree 30 minutes south. So this is the value, same value, but it lies in southern hemisphere. Arctic circle, it lies in northern hemisphere. So this is Arctic. यहाँ पे ये Arctic होगा. This is Antarctic.
No, this is Antarctic. This is Antarctic. 66 डिग्री हाफ साउथ, ये यहाँ पे भी है 66 डिग्री हाफ नॉर्थ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23 डिग्री हाफ साउथ साउथ। एंड दिस इज लैटिट्यूड 0 डिग्री, इट इज 0 डिग्री, इट इज 0 डिग्री। सो यहाँ पे अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लैटिट्यूड? ऑन 21st December यहाँ पे जो है सन रेज डायरेक्टली फॉल होती है एंड 24 आवर्स सनलाइट इज अवेलेबल। यहाँ पे 21st December पे जो है सन रेज जो है अवेलेबल होती है 24 आवर्स के लिए एंटार्क्टिक सर्कल पे। और यहाँ पे जो है आर्टिक सर्कल में 21 जून को क्या होता है, 21 जून को ये अवेलेबल होता है। ये 21 जून को अवेलेबल होता है और ये 20 इसमें अवेलेबल होता है। सो दिस एंटार्क्टिक सर्कल। नाउ वी हैव अनदर, अब ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आ गए। नाउ व्हाट इज हियर? दिस इज पोल, these are two poles, these are two poles. One is north pole, north pole is 90 degrees north. इसका वैल्यू कितना होता है? 90 degrees north. इसका वैल्यू 90 degrees north होता है। एक्चुअली इट इज लाइक अ पॉइंट, इट इज लाइक अ पॉइंट। वो कैसे पॉइंट होता है मैं आपको समझाऊंगा। ये 0 डिग्री है हमारा, ये इससे कम हो गया, ये इससे कम हो गया क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट सर्कल। ये इससे कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम 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 होते 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 यहाँ पे जो है ये एक पॉइंट हमें दिखता है। एक्चुअली दिस नॉट पॉइंट, दिस द स्मॉलेस्ट सर्कल, स्मॉलेस्ट सर्कल। लेकिन ये इतना स्मॉल होता है कि हमें लगता है कि ये पॉइंट है। सेम इज द केस विद साउथ पोल। साउथ पोल भी पॉइंट होता है, ये भी नॉर्थ पोल भी पॉइंट होता है। सो नॉर्थ पोल का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ। और ये क्या होता है? एक्सट्रीम एंड होता है, ये यहाँ पे होता है। और जो है साउथ पोल जो है, साउथ पोल भी 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे ये साउथ पोल होता है, ये भी 90 डिग्रीज होता है, 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री। सो दीज आर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब ये हमारे लैटिट्यूड्स आ गए। अब इसमें बहुत सारा मतलब दे आर वेरी, अगर हम जियोग्राफी में होते हैं तो जियोग्राफी में इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पे हम टूरिज्म ये पढ़ रहे हैं, हमें खाली यहाँ से ये दिखाना है कि हमें खाली पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। वी मस्ट नो द डिग्रीज ऑफ डिफरेंट लैटिट्यूड्स, बस हमें उतना ही देखना है। और इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इसमें देखना है। वरना इसमें जो है, इसमें बहुत सारा जो है, इसमें ट्रॉपिकल जोन भी आता है, सब ट्रॉपिकल जोन आता है, वो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है। खाली लैटिट्यूड्स जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो हमने डिस्कस किए। अब जो है इसके बाद जो है लैटिट्यूड के बाद हमारा लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड्स। सो लॉन्गिट्यूड्स, सो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? देखो ये हमने ड्रॉ किया, दिस इज लैटिट्यूड्स एंड दीज आर पैरेलल्स एंड दे आर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये कहीं पे मीट नहीं होते हैं। सो अब अगर हम अभी ये तो सर्कल्स है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर ये लाइन्स है तो दीज लाइन्स आर पैरेलल्स एंड दीज सर्कल्स आर पैरेलल्स, दीज सर्कल्स आर पैरेलल्स। तो लॉन्गिट्यूड्स जो है, लॉन्गिट्यूड्स में आपको सिंपल से वर्ड्स में समझा सकता हूं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो ये लाइन्स मीट होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ये लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स ऑन अर्थ, ये भी हम लिख सकते हैं, vertical lines, but these are not lines, these are also circles। ये भी एक सर्कल है, लेकिन ये कैसे रन होते हैं, ये कैसे रन होते हैं? तो ये नॉर्थ टू साउथ ये ऐसे रन होते हैं। सो देयर लाइन, सो इम्पोर्टेंट अब जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन।
प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री होता है। अब प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री है, क्योंकि 0 डिग्री है तो प्राइम मेरिडियन से ही हमारी क्या होगी, नंबरिंग शुरू होगी। और इसकी एंड कहाँ पे होती है, 180 डिग्री तक। यहाँ से होंगे ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट, ऐसे रन होते हैं। सो वैल्यू इज प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये सारे जो है एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो आपको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेटर, आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड देना है। सो दिस इज लॉन्गिट्यूड। अब इसमें खाली ये इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। अब यहाँ से जो है टाइम का भी हमें इसी से पता चलता है। टाइम जो देखना होता है, स्टैंडर्ड टाइम देखना होता है, वो भी हमें इसी से पता चलता है इसे। लेकिन यहाँ पे जो है हमें खाली लोकेशन, जब हम ये करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेशंस जो है हम देखते हैं, तो इसके लिए हमें जो है लॉन्गिट्यूड्स जो है ये जो है वर्टिकल लाइन्स होते हैं, वर्टिकल सर्कल्स जो होते हैं, मीट कहाँ पे होते हैं, नॉर्थ पोल पे मीट होते हैं, साउथ पोल पे ये मीट होते हैं। ये ऐसे ही पास होते हैं, इस तरह ये पास होते हैं। और जो है अब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन कैसे अब आइडेंटिफाई हम करेंगे, हम आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है हमें दो चीज़ों का, वी मस्ट नो द 2 थिंग्स। हाँ, फर्स्ट वी मस्ट नो द लैटिट्यूड, डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स। फर्स्ट डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स and degree of longitudes. So आपको डिग्री ऑफ लैटिट्यूड पता है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पता है। डिग्री ऑफ लैटिट्यूड आपको पता है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड भी पता है। अब डिग्री ऑफ लैटिट्यूड और डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, अगर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड यहाँ से ये चल रहा है, ये आपको पता है, और डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है ये यहाँ से चलता है, तो जिस पॉइंट पे ये मीट होते हैं, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन। वो वहां पे हमारी जो है लोकेशन ट्रेस होती है। हमारी जो प्लेस जो है, जिस प्लेस को हम देखना चाहते हैं, वो प्लेस हमें लोकेट या आइडेंटिफाई हो जाती है। कहाँ पे, व्हेन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मीट एट अ प्लेस। जिस प्लेस पे ये मीट होते हैं, जिस प्लेस पे ये मिल जाते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जिस प्लेस पे मिल जाते हैं, उस प्लेस पे, फॉर एग्जांपल हमें किसी डेस्टिनेशन पे जाना है। अब उस डेस्टिनेशन पे क्या है, अब हमें उस डेस्टिनेशन का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पता है। अब जो है हम मैप पे देखेंगे कि ये जो है ये नंबर, लैटिट्यूड ये डिग्री है, लॉन्गिट्यूड ये है, तो हम मैप पे ये सीधे बता सकते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन जो है ये इस प्लेस पे है। अब इससे क्या पता चलता है हमें, इससे हमें ये भी पता चलेगा, देखो अब जो है ये लैटिट्यूड इक्वेटर से कितना दूर है, ये नॉर्दर्न स्फीयर में है कि साउदर्न में है। अगर नॉर्दर्न में होगा तो आप उसको फ्लोरल जो है, या जो इसमें आप ये भी पता चल सकता है कि अब क्लाइमेट इस प्लेस का क्या होगा, क्लाइमेट इस प्लेस का क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको फिर इस तरीका से पता चल सकती हैं। सो दिस इज द लैटिट्यूडनल एंड दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशंस। सो आई होप you understand my today's lecture. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि जियोग्राफी पे एक और लेक्चर आपको दूँ। थोड़ा सा इसमें अगर देखूँगा मैं कि अगर इसमें कुछ और रह गया हो तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाजिर हो जाऊँगा। हैव अ नाइस डे। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।